So in yesterday's class, we saw some reporting. We create one. We start to create about this reports executive summary. Let's say this page name will be the executive summary. I can rename this page name as this. Double click on this particular name and rename it. So I'll rename this as the executive summary. Okay, so this is my executive summary page. Before starting to this, let's understand some DAX concept regarding time intelligence. Okay, so now in this particular monthly order quantity KPI, we use previous month order quantity measure as a target measure. Okay, in this particular measure, we use this particular functions, which is nothing but a date add. Okay, so what this date add function is doing, basically date add functions create one table, backend table, जिसमें वो this particular calendar dim की date को refer करेगा. You provide interval is -1 and month. तो interval in month, so backend में एक table हो जाएगा. Whatever selections you have in the slices, let's say मैंने slices में 2015 select किया हुआ है and year मैंने select किया हुआ है, let's say February. तो what this function is doing, it goes to the calendar, it filter the calendar based upon the interval you provided, and it create the calendar for January month because you provide the interval -1 and interval in month. So it filter the dates for the January month, and once this dates filter based upon your model, you create this model, right? So in this calendar dim, based upon that filter date, this filter is passing through this relationships, through these directions to the sales pack table. सेल्स फैक्ट टेबल पे ये पर्टिकुलर डेट का जो कॉलम है, ये किस कॉलम से कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू ऑर्डर डेट. लेट मी जूम इट आउट. दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से मैं डेट का जो कॉलम है वो ऑर्डर डेट को कनेक्ट किया हूँ. ओके, सो वट एवर हमारा जो बैकएंड में डेट एड फंक्शंस क्या कर रहा है, यहाँ से जो जनवरी मंथ का फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन यहाँ पे इस ऑर्डर डेट पे अप्लाई कर रहा है. वो जनवरी मंथ की सारी ऑर्डर डेट को कलेक्ट करेगा, इनको फिल्टर करेगा, and based upon that filtrations it calculate total order quantity or whatever measures you created. Let's say we create a total order quantity which is nothing but a order quantity का जो कॉलम है उसका सम है. तो जब फिल्ट्रेशंस के बाद इस ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम में जितनी वैल्यूज बचेंगी उसका सम इज नथिंग बट जनवरी मंथ्स की ऑर्डर क्वांटिटी. दैट्स हाउ दिस फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग. This is called as a filter propagation, right? Sometime interviewer ask about what is the filter propagation. Explain me about the filter propagation. So filter propagation is nothing but when you filter something in the reports, so at the time you need to explain with the example. उसी वे से आप उसको properly explain कर पाओगे. So whenever you filter something in the reports, let's say we have a year filter in our reports, we filter some values in that particular column. Let's say we filter for 2015. In the model, in the relationships, we have a created relationship between the calendar dim and our transaction table on the basis of a common column, which is nothing but a date. So what is happening? This particular 2015s is filtered in the calendar dim table first, or my calendar table first. This filtration is passing through the relationships in the transaction table. It filtered that transaction table based upon the value you filter or value you provided in the slices, and it filter the transaction tables and give you the results in the form of aggregations. Whatever the aggregations you perform sum, you perform max, mean, average, count, whatever aggregations you perform, that aggregations provide you a result based upon that filtration. So filter passing from one table to another table through the directions, through the relationships, that concept is called as a filter propagation. Understood? So filter propagations के through ही ये filtrations हो रहे हैं and we getting this results.
Okay, so this filter propagations, when we talk about the time intelligence में we also have some concepts like YTD, MTD, and QTD. Okay, what is this for? YTD is nothing but a year to date. MTD stands for months to date, and QTD stands for quarter to date. So let's understand those terms. For example, let's say this is 2025. Okay, and if I ask you about what is your year to date sale for 2025, so आपके माइंड में जब ये क्वेश्चन आता है कि YTD सेल फॉर द 2025, देन मैं कैलेंडर टीम की या मैं डेट्स की अगर बात करूँ तो मैं कौन सी डेट्स से कंसिडरेशन करूँगा फॉर 2025? आई एम कंसिडरिंग 1 जनवरी 2025 टिल टुडे. ओके, टुडे इज वट एवर, आप दिसंबर मंथ में हो, किसी भी मंथ में हो, जनवरी 2025 के ईयर में किसी भी मंथ में हो, तो YTD का मतलब होता है कि 1 जनवरी या उस ईयर की पहली तारीख से लेके आज की करंट डेट तक वट एवर सेल मेरा हुआ है, दैट इज अंडर YTD. ओके, एंड व्हाट अबाउट MTD? if I call out this as a MTD, month to date, so if someone asks me what is the month to date sale for 2025, तो मंथ टू डेट मतलब जिस मंथ से आप हो अभी, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अगस्त मंथ की आज 2 तारीख है, राइट? इफ आई आस्क अबाउट व्हाट इज द अगस्त मंथ टू डेट सेल, सो मुझे डेट्स कौन सी कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी? नॉट 1 जनवरी, इट इज द 1 अगस्त से लेके टिल डेट 2 अगस्त. सो 2 दिन का सेल आएगा, टू yesterday and today, फर्स्ट एंड सेकेंड. So this is what month to date is. And quarter to date is, let's say अगस्त कौन से क्वार्टर में आता है? सेकेंड क्वार्टर में आता है. क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? जून से, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से स्टार्ट होता है. जनवरी, फरवरी, मार्च इज द माई फर्स्ट क्वार्टर, एंड देन अप्रैल, मई, जून इज माई सेकेंड क्वार्टर. जून, जुलाई, अगस्त इज माई वट एवर थर्ड. सो अगस्त बेसिकली ना थर्ड क्वार्टर. सो ये क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो जुलाई से अगर मैं QTD की बात कर रहा हूँ तो आई नीड टू टेक 1 जुलाई 2025 अंडर कंसिडरेशन एज माई फर्स्ट डेट टू द टिल डेट, अगर मैं QTD की बात करता हूँ. ये समझ में आ रहा है? ईयर टू डेट मतलब फर्स्ट ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है वहां से लेके करंट डेट तक, टिल डेट तक. मंथ टू डेट मतलब मंथ की पहली तारीख से लेके उस मंथ की जिस तारीख तक आप हो उस तारीख तक. एंड क्वार्टर टू डेट मतलब क्वार्टर की फर्स्ट तारीख से लेके करंट डेट तक, टिल डेट तक, वट एवर. ओके, इफ लेट्स से अभी अगस्त चल रहा है, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरा क्वार्टर खत्म हो जाएगा और अक्टूबर में नया क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा. सो अगर आप लेट्स से नवंबर में हो तो आपको फिर क्वार्टर 4 कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, एंड यू विल QTD विल बी स्टार्ट फ्रॉम द सितंबर, राइट? या अक्टूबर से स्टार्ट होगा Q4. Okay, so those calculations we can create in a Power BI desktop using DAX calculation. So how can we provide this? Let's say मैं यहाँ पे एक measure create कर रहा हूँ. Let's say new measure. First functions we have total YTD. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको revenue YTD. ठीक है, में फंक्शन का नाम है मेरे पास, यू सी दिस टोटल MTD, टोटल QTD एंड टोटल YTD. वी हैव दिस फंक्शंस. आई एम सेलेक्टिंग टोटल YTD. What these functions expecting the parameters? It expect first parameter as expressions, second one is the dates, and third one is the filters. Whatever you seeing in the square bracket in tooltips, those are the optional one. You need not to provide always this, but there is a optional you can provide. But mandatory parameter कौन सा है? Expressions and the dates you need to pass. What it gives you, evaluate the specified expressions over the interval which begins with the first day of the year and ends with the last date in the specified date column after applying a specified filter. Okay, so let's do this. Total YTD में expression I'm passing. Expression is nothing but whatever measures I created or any other expressions you want to create over here. Let's say कोई और aggregations मुझे करना है,
दैट एग्रीगेशंस आई कैन पास इन द एक्सप्रेशंस. सो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रेवेन्यू का मेजर ऑलरेडी आई कैलकुलेटेड ओवर हियर. सो इट इज नथिंग बट अ सम एक्स, राइट. सम एक्स को यूज करके हमने प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया था. So that revenue का measure I'm passing this as a expression over here. This is my measure. Measure always coming with this only name, not the table name, because measure not associated in any table. So measure का जब भी आप use करोगे किसी particular another measures में, तो वो act as a square bracket only. So revenue के बाद I'll just give you a comma because expression के बाद comma है. Then I need to pass the dates. Dates is from my calendar team का जो मेरा table है उसकी date की column. So से कैलेंडर डीम का डेट का मेरा कॉलम. आफ्टरवर्ड्स आई जस्ट हिट एंटर. Okay, so if I want to analyze this, what actually this gives me, so I am creating one table. Okay, and in this table I'm putting some values. Let's say from calendar dim I'm putting year, and I'm putting month name. Okay, and also my revenue का मेजर जो हमारा ओरिजिनल मेजर है that I'm passing, what it gives me, हर एक मंथ वाइज पर्टिकुलर मंथ का वो क्या कर रहा है, मुझे रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है. एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस YTD कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है, रेवेन्यू YTD. इफ आई एम पुटिंग ओवर हियर यू कैन सी इट गिव्स मी, लेट्स से फॉर द जनवरी में, लेट्स मी इंक्रीज सम फॉन्ट. Okay, now let's understand this. For the 2015 January, my revenue is 585,312, which is nothing but the same 585,31265. If I goes to the February month, it's showing me February का मेरा revenue है 532,226. But if you came over here, this particular value is showing 1117,538, which is nothing but a cumulative total of this one. Because in a YTD what stands for, वो आपको year to date सेल देता है from the first of date of your year to the till date. सो इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं फेब्रुवरी में पूछता हूँ कि मेरा YTD कितना है, सो आई नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन जनवरी ऑल्सो. जनवरी एंड फेब्रुवरी का मिलके मेरा ये 1117 है. अंडरस्टूड. सो ऐसे वो अगेन इफ आई गो टू द मार्च 1760 975 इज नथिंग बट अ कम्युलेटिव टोटल ऑफ जनवरी फेब्रुवरी एंड मार्च. दिस इज दिस व्हाट दिस YTD गिव्स यू रिजल्ट. ऐसे कब तक करेगा वो, टिल द ईयर एंड. यू सी इन द डिसम्बर मंथ 64,04933 इज माई टोटल फॉर 2015. 15 का YTD सेल मेरा कितना है 64,04933. इफ आई टॉक अबाउट जनवरी 16, यहाँ पे देखो अगेन इट विल बी रीसेटिंग. अगेन जनवरी के लिए मुझे दोनों वैल्यू सेम मिल रही है. अगेन कम्युलेटिव करना स्टार्ट करेगा टिल 2016 के दिसंबर तक. YTD अंडरस्टैंड होगा. YTD क्या करेगा, कम्युलेटिव टोटल देगा आपको, हर एक मंथ को एड अप करते चलेगा टिल द डिसम्बर ईयर एंड जब आपका हो रहा है तब तक. अगेन फ्रॉम द जनवरी इट विल बी स्टार्ट अगेन टू कम्युलेटिव. लेट्स अंडरस्टैंड द QTD also. So I'll just copy this measure. Measures will be going to same, only the functions will be changing. So I'll just copy this measure and I'll create a new measure for the QTD. Instead of this Y, I can provide Q. This is my QTD, total QTD का measure. Okay, I need to rename this visual. Instead of this YTD, I'll say QTD. And this measures, if I understand this measures, just drag into this table. Let's understand this now. This particular measures, what it gives you. Again, for the January month, it gives you same value because मेरा quarter यहाँ से start हो रहा है. Quarter end मेरा March में हो रहा है, तो it will be cumulate January, February and March for that quarter. Again it will be starting from the April fresh value. You see this particular April की value same है. Again April, May, June को cumulative करेगा. Again fresh start will be July next quarter.
तो 3 क्वार्टर का वो कम्युलेटिव करता चलेगा क्वार्टर वाइज। जो ये ईयर वाइज कम्युलेटिव कर रहा था, ये अभी क्वार्टर वाइज कम्युलेशन कर रहा है। अंडरस्टैंड QTD and YTD? Now let's understand month to date. Let's me create this again in a new measure. I'll say new month to date. Copy this measure again. Instead of Y, I'll putting M. Okay, so this is my month to date measure. If I drag this measure in this particular visual, see what it gives you. इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं दिख रहा है मुझे, करेक्ट? ऐसा क्यों? Yes, we already segregate this data month wise. अगर मंथ टू डेट का सेल देखना है तो हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मंथ हमें क्या पुट करना पड़ेगा? डेट्स पुट करने के, तभी वी कैन एबल टू सी कि ईच डेट में सेल कैसे कम्युलेटिव हो रहा है, राइट? ये अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? तो लेट्स से मैं इसको विजुअल को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ. जस्ट कॉपी दिस विजुअल्स एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड आई जस्ट रिमूव दिस ऑल and also putting the dates over here from the calendar day. Now you can see मेरा जनवरी मंथ्स की जो डेट है 1 2 3 4 5 6 उनका सेल कम्युलेटिव हो रहा है, राइट? दिस इज माय रेवेन्यू का मेजर क्या कर रहा है? इंडिविजुअल डे का सेल दे रहा है. बट दिस एमटीडी मेजर गिव्स मी कम्युलेशंस ऑफ दिस 8 + 14 + 28 लाइक दिस टिल कब तक? मंथ एंड होने तक. यहाँ पे मेरा मंथ एंड हुआ 31 जनवरी तक. यहाँ पे 585, दिस इज माय टोटल मंथ का सेल, राइट? 585,312. एंड अगेन यहाँ से 1st of February से अगेन it will be start to accumulate. Okay, this is what these three measures gives you results: MTD, YTD and QTD. अंडरस्टैंड है ये सबको? किसी में कुछ डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट? अंडरस्टैंड है? यस, नो? Yes, sir. Okay, now let's move forward. Let's understand more functions in time intelligence. The another function is called as, let's say, जैसे हमने ये डेट ऐड का फंक्शन देखा, राइट? previous month order quantity. So what this date add gives me? Date add gives me a previous month or whatever the intervals I want to provide over here. एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जब आई एम यूजिंग दिस डेट एड फंक्शंस, इंटरवल कैसे आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ डे, मंथ, क्वार्टर्स एंड ईयर. ओके, तो मैंने यहाँ पे मंथ का लेट से दिया हुआ है एंड इट गिव्स मी अ प्रीवियस मंथ सेल. आई एम आल्सो पुटिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर मैनर. आई जस्ट रिमूव दिस QTD YTD now and let's understand this previous month quarter. I'll just rename it. Let's say एक वे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर पुट किया हुआ है इस पर्टिकुलर विजुअल में. मेजर का नाम यहाँ पे अलग है. इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशंस में मैं उस मेजर का नाम कुछ अलग दे सकता हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग. जैसे प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्वांटिटी, आई जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. इंस्टेड ऑफ आई ऑर्डर क्वांटिटी, आई से ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग डेट ऐड. जस्ट हिट एंटर. यहाँ पे ये नाम चेंज हो जाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग डेट एड, बट ओरिजिनल नेम क्या है उसका? ओरिजिनल नेम यही है, प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्वांटिटी. सो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, if measures name is different but you want to change this name in your actual visuals, you can do it in this way. ओके, ये कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है हमें कि मेजर के नाम अलग होते हैं. हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मेजर्स के नाम देते हैं, राइट? कि हमें पता चले कि कौन सा कैलकुलेशन किस वे से लिखा हुआ है. बट ऑलवेज क्लाइंट्स को वो चीज़ें नहीं देखनी है यहाँ पे कि कुछ अलग से नाम दिख रहा है. कभी कभी आप टेस्ट मेजर बनाते हो, डमी मेजर्स बनाते हो, नाम देते हो उनको डमी, तो आप ऐसे नाम नहीं दे सकते यहाँ पे ना, डमी वगैरह इन द क्लाइंट रिपोर्ट्स. तो आप उनको प्रॉपर वे में नेमिंग क्लेचर यहाँ से कर सकते हो. बट योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन पुट दिस वट एवर यू ओवर हियर, बट इन द विजुअलाइजेशंस यू पुट इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग डेट एड तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है हमें. इट गिव्स मी अ प्रीवियस मंथ का ऑर्डर क्वांटिटी और सेल.
over here it gives me a order quantity. So let's create one more measure for the sales revenue. Just copy this measure, order quantity, and create a new measure. I'll say And how previous did year sale. Let's say मैं year wise जाता हूँ, ठीक है? So let's say revenue using how did how did that function differs from previous month? how data add functions. Differs from previous month. For this, we are calculating previous month order. No? Hmm. Hmm. For that, we can use previous month function as well. Yeah, you can use. Let me complete this. Let me showcase you one other function. Then we'll discuss on this. Okay. So let's say revenue using data day. This time I'm not calculating order quantity. I'm calculating revenue. And in the data add function, instead of passing the month, I'm passing year. Okay. Interval is year. Just remove this order quantity over here and I'm putting this over here. So what this measure gives me, it gives me a previous year sale. Let's say for 2015 के पहले हमारे पास कोई year नहीं है, that's why those values are blank. 16 को previous year है 15, तो 16 के सामने 15 की values आएंगी. Okay, that's what this data gives me. We have another functions called, let's say, एक और function है, let me see. Revenue, same, SMPL वाला देता हूँ नाम इसको. इसका नाम है same period last year. So again I'm say calculate expression is my revenue and my filter is my same period last year. What these functions gives you returns a set of dates in the current selection from the previous year. So again over here I'll say calendar table ka date. I hit enter. Now I'll just drag over there, see what it gives me. It gives me the same value that this particular revenue gives you, correct? Just say for example something goes wrong for this measure. So sorry, calendar using DAX नहीं, calendar dim. Calendar dim का date, not using DAX one because this is not in a relationships. So this particular measure also same period last year gives you a same value that date ad gives you. So sometimes interviewer ask about ki what is the difference between this date ad and the same period last year. Okay, so in the date ad we have a flexibility to provide the intervals. यहाँ पे इंटरवल मैंने मंथ से दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे इंटरवल मैंने कैसे दिया, ईयर वाइज दिया. लेट्स से ईयर का इंटरवल दिया, सो इट गिव्स मी ईयर वाइज वैल्यू. मैं इंटरवल मंथ में भी दे सकता हूँ, करेक्ट? सो इन डेट एड फंक्शंस वेर वी यूजिंग इन द डेट एड फंक्शंस वी पासिंग द कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं हम डेट का पैरामीटर भी पास कर रहे हैं, वी पासिंग इंटरवल आल्सो. इंटरवल किस टर्म में चाहिए वो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं. हमें डेट में चाहिए, मंथ में चाहिए,
ईयर में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए. सो दैट फिजिबिलिटी वी हैविंग इन द डेट एड फंक्शन, बट दैट फिजिबिलिटी वी डोंट हैव इन अ सेम पीरियड लास्ट ईयर. It just gives you, let's say, whatever context you have. For example, in my visualizations, I'm having year and month. I am calculating on the basis of year and month, so it gives me a, in the same context, it gives me a values. Let's understand more on this. Just removing this dated, and in this particular function, इसका मीनिंग क्या होता है? सेम पीरियड लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर इट ऑलवेज गिव्स यू फॉर द लास्ट ईयर सेम मंथ के लिए. बट दिस इज नॉट लाइक अ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 2015 के पहले वाला ईयर कौन सा है? 2014 है. तो 14 के लिए हमारे पास वैल्यूज नहीं है, इसलिए ये वैल्यूज ब्लैंक है. बट फॉर द 16 ऑफ जनवरी वी हैव 2015 की वैल्यू, दैट्स व्हाई इट केम सेम over here in the same period last year. But in the date add functions we can say कि मुझे एक साल पीछे का नहीं देखना है, मुझे 2 साल पीछे का डेटा देखना है. तो वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इंटरवल को चेंज कर सकते हो. बट दिस पर्टिकुलर फंक्शन गिव्स यू ओनली फॉर द लास्ट ईयर. जैसे क्लाइंट को कभी कभी ऐसे चाहिए कि आपने विजुअलाइजेशन में मुझे पास्ट 2 मंथ्स के गैप से कंपैरिजन करना है. लेट्स से मुझे वैल्यूज कंपेयर करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर मार्च के लिए, मार्च मंथ का अगर मैं देख रहा हूँ, तो आई नीड टू चेक फॉर प्रीवियस मंथ का जनवरी kind of, right? So same period last year gives you always for the last year only, but a date add gives you a flexibility. You can pass the interval. Let's say मैं -1 interval पास किया तो वो previous 1 year के लिए चेक कर रहा है. If I pass interval -2 तो वो previous के previous year में जाके चेक करेगा वैल्यू. So that is the difference between this date add and the same period last year. Same period last year gives you value only for the last year. Let's say मैं 16 को या मैं 17 को कंपेयर करना चाहता हूँ 15 के साथ. सो मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर से वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर गिव्स यू फॉर 16. 15 के लिए 14 का देगा, 16 के लिए 15 का देगा. बट डेट एड कैन गिव यू दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट दिस कैलकुलेशंस. आप डेट एड में वहां पे -2 डाल दिया एंड देन ईयर डाल दिया, तो इट विल बी गिव यू अ वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. आया समझ में? समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? हेलो. Yes, sir. Okay, so this is the difference between same period last year and the date add. Okay, so now again we have the function that somebody asked about previous month, right? So let's try this. So let's say revenue this is my function calculate expression is my revenue and say previous month. We have this previous day, previous month, previous quarter. Let's say previous month. What this previous month accept? It accept a one column dates. Here what it gives you returns a previous month. That means it gives you a table for the previous month. जैसे डेट एड में हमने देखा कि डेट एड बैक एंड में जैसे एक टेबल क्रिएट कर रहा था, वट एवर इंटरवल यू आर पासिंग, सेम वे प्रीवियस मंथ क्या करेगा? ओनली गिव्स यू प्रीवियस मंथ. सो आई एम प्रोवाइडिंग सम वैल्यूज. लेट्स से कैलेंडर टेबल जो है हमारा, कैलेंडर टेबल की डेट में पास कर रहा हूँ यहाँ पे. आई जस्ट क्लोजिंग द ब्रैकेट एंड हिट एंटर. आई एम ड्रैगिंग दिस इनटू द विजुअलाइजेशन over here. What it gives you? Let's say for the January month we don't have any values, इसलिए blank आया. For February month it gives you 585, right? Same kind of a calculation we also achieve using date add, right? Date add में हमने बस क्या किया था, वहाँ पे interval -1 and month का दिया था. Then also we getting the same result. So in a common practice
always people using date add function because it gives you a flexibility. मल्टीपल फंक्शंस माइंड में रखने से अच्छा एक ऐसा फंक्शंस माइंड में रखो जो आपको मल्टीपल वे से हेल्प कर सकता है. डेट ऐड में आप मल्टीपल इंटरवल दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डे, मंथ, ईयर एंड क्वार्टर. तो एक ही मेजर से आप मल्टीपल थिंग्स अचीव कर सकते हो. जो वैल्यूज मुझे प्रीवियस मंथ दे सकता है वही वैल्यू आई कैन अचीव यूजिंग डेट एड वन फंक्शन. सो प्रीवियस मंथ को मुझे माइंड में रखने की जरूरत नहीं, मैंने एक फंक्शन डेट एड का याद रखा तो इट विल बी फाइन फॉर मी. इट विल बी गिव्स मी अ प्रीवियस आल्सो एंड फॉरवर्ड आल्सो. सो डैक्स में मल्टीपल वे से वैल्यूज को अचीव करना पॉसिबल है मल्टीपल फंक्शन से, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो. जैसे पर्टिकुलरली आई एम नॉट यूजिंग प्रीवियस मंथ, मैं ऑलवेज यूज करता हूँ डेट एड फंक्शन बिकॉज इट इज मोर फ्लेक्सिबल फॉर मी to keep all the functions in mind instead of I'm keeping only one functions for this date add function. Okay, so this is the way previous month gives you only for the previous month, but the same can be achieved using date add also, but date add is more flexible than previous month. Hope this is clear. Somebody asked regarding the previous month, right? Yeah, yes. Okay, so now let's understand one more function. Let me see. There is one more functions called parallel period. Let me see the let me calculate this. Let's say calculate new measures. Revenue using parallel period. So let's say calculate. My expression is my revenue. Let's say parallel period. Again, this parallel period also having three parameters: dates, number of intervals, and interval. Returns a parallel period of dates by the given set of dates in the specified interval. Let's say I'm giving my calendar dim date. Let's say interval will be the -1 and it is in a month. You see, in a parallel period, we have interval for the month, quarter and year. ठीक है, बट वेन वी सॉ द डेट एड, यहाँ पे एक और ऐड था राइट, यहाँ पे डे भी था. सो इंटरव्यू समटाइम आस्क यू अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पैरेलल पीरियड एंड डेट एड. So date add में you have a more flexibility. You can provide the interval on the day basis also. But in the parallel period, you provide only for the month, quarter and year. Okay, see this is the small thing, but interviewer can expect. वो कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछते हैं ऐसे डिफरेंस पूछते हैं डैक्स के बीच. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल पीरियड. लेट्स से यहाँ पे सी मैं यहाँ पे इंटरवल दे रहा हूँ ईयर का एंड just give you enter and let's see what this particular gives me a result. I'm just removing this previous month this and I'm adding this date add, right? We have this date add. It's a parallel period and we have date add. So one more difference between these two functions कि parallel period क्या करेगा, already previous year का let's say we have for 2016 we have 2015 previous period. 2015 का टोटल रेवेन्यू कितना रहेगा 64,04,933. तो पैरेलल पीरियड एंड डेट एड में क्या फर्क है, पैरेलल पीरियड गिव्स यू ओ टोटल वैल्यू. यूसी सारे रोज के लिए मुझे इस पर्टिकुलर ईयर में सारे रोज के लिए मुझे टोटल मिल रही है 64. ये 64 क्या है, जनवरी ये 2015 का टोटल रेवेन्यू है. क्योंकि मैंने पैरेलल पीरियड का जो कैलकुलेशन है उसमें क्या पास किया हुआ है,
we passing a year. If I'm passing month over here, what is happening? It gives you same result. You see, if I'm passing month, then what is happening? Now you can see, ये मुझे क्या कर रहा है, फेब्रुवरी के लिए जनवरी का दे रहा है, मार्च के लिए फेब्रुवरी का दे रहा है, करेक्ट, दिस वन. So whatever interval you passing over here in the parallel period, वो उसका टोटल आपको देगा यहाँ पे ऑलवेज, उस पर्टिकुलर इंटरवल का. जैसे मैंने प्रीवियस मंथ का यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है पैरेलल पीरियड में. सो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू फॉर 2015 जनवरी, इट गिव्स यू अ टोटल वैल्यू फॉर द मंथ. लेट्स से यहाँ पे मैं डेट को भी ऐड करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, you can able to understand this. Now you can able to understand. जैसे जब मैंने पैरेलल पीरियड में ईयर का इंटरवल दिया था, तो वो मंथ के लिए, हर एक मंथ के लिए मुझे प्रीवियस ईयर का टोटल दे रहा था. नाउ आई एम एडिंग डे ओवर हियर इन द विजुअल एंड आई एम पासिंग अ मंथ का इंटरवल इन द पैरेलल पीरियड. सो डेट एड फंक्शन जो है, डेट एड फंक्शन देखो आपको कैसे बिहेव कर रहा है. व्हाट डेट एड गिव्स यू, लेट मी शोकेस यू. Remove this. And I'm giving you, फिर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे 2015 खत्म होता है. डेट एड फंक्शंस आपको, लेट्स से डेट एड में क्या हमने फंक्शन पुट किया, व्हाट वी प्रोवाइड इन द डेट एड. दिस पर्टिकुलर रो की अगर मैं बात करूं, 16 है राइट. इसकी अगर बात करूं तो 1 जनवरी का मेरा एक्चुअल रेवेन्यू कितना है, 12,000 समथिंग कुछ है. रेवेन्यू यूजिंग डेट एड मुझे 8351 दे रहा है. ये 8351 कहाँ से आया है? यस, प्रीवियस ईयर का 1 जन में. एज पर माई कॉन्टेक्स्ट डेट एड ने अपना बिहेवियर चेंज किया, मुझे जो वैल्यू एक्सपेक्ट थी वो उसने दी. बट व्हाट दिस पर्टिकुलर पैरेलल पीरियड गिव्स यू, it gives you 563,761. each is nothing but this is a whole month. जनवरी का पूरा मंथ जो प्रीवियस ईयर का है उसका टोटल है ये 563. समझ में आ रहा है? सो डेट एड गिव्स यू वन डेट का सेल प्रीवियस ईयर के 2015 का, बट एट द सेम टाइम पैरेलल पीरियड गिव्स यू होल मंथ का सेल. Because when I create this parallel period measures, I am providing interval as a month, -1 month. तो पैरेलल पीरियड ऑलवेज क्या करेगा, वटेवर आपने उसके अंदर इंटरवल पास किया है, जैसे आपने -1 मंथ डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस मंथ जो रहेगा, प्रीवियस मंथ का टोटल देगा. ओके let me see the value also to confirm this. कैसे चेक करेंगे हम, वी वांट टू चेक दिस वैल्यू 563,761. ये एक्चुअली क्या है? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ड्रैगिंग अ टेबल इन, लेट्स से मैं ईयर का एक यहाँ पे टेबल पुट किया. दिस इज माय टेबल विजुअल
डोंट वांट टू समराइज द ईयर, 3 ईयर मेरे सामने है, ऑल्सो मंथ नेम यहाँ पे पुट किया, आई एम पुटिंग माई रेवेन्यू ऑल्सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो ये 563 आ रही है ना, so 563 we are getting over here, say this one December month। so ये जनवरी मंथ का 563 जनवरी मंथ का नहीं है, ये लास्ट मंथ है। दिस इज जनवरी, ये 2016 का जनवरी है, 2015 का दिसंबर जो है उसका सब टोटल है ये 563, बिकॉज वी आर पासिंग अ इंटरवल इन अ मंथ, प्रीवियस मंथ -1 मंथ किया हुआ है ना हमने। अगर यही मैंने -1 ईयर किया होता तो 2015 का टोटल आ जाता यहाँ पे इसके सामने। अभी समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन कुछ? अभी लेट्स से मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मंथ आई एम पुटिंग ईयर। See, now it values changes to 64, which is nothing but a total for this 2015। अभी भी कंफर्मेशन करना है तो लेट्स से मैं स्लाइसर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे एक स्लाइसर्स को पुट करते हैं। जस्ट पुटिंग वन स्लाइसर्स, इन द स्लाइसर्स आई एम पुटिंग ईयर का हमारा जो कॉलम है वो पुट कर रहा हूँ, ओके। एंड इसको मैं ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ, आर्टिकल लिस्ट, इसको यहाँ पे रखता हूँ। इफ आई एम फिल्टरिंग ऑन द 2015, यू सी 6404, यही वैल्यू है ये, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो वही है 64, जो 2015 का टोटल है। अभी क्लियर है पैरेलल पीरियड आपको क्या वैल्यू देता है एंड डेटेड आपको क्या वैल्यू देता है? ओके, अंडरस्टूड? now we already see this all except all selected। इसमें किसी को कुछ डाउट है? what all gives you? all का मतलब क्या होता है? DAX में हमने all फंक्शन यूज किया, राइट? why we use this all फंक्शन? all बेसिकली क्या करता है बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, what this all functions gives you? or anybody can tell me the difference between this all selected and all except? 3 DAX functions we already seen। I think we spent one lecture on this, huh? Total full lectures for three functions, important functions, all except, all selected। so आप आज ये 3 functions पे explore करोगे वापस, ठीक है? Monday again I will ask you regarding this all except, all selected, or either way not only for the 3 functions, whatever the DAX functions we studied till date, सभी DAX functions को आप एक एक करके विजुअलाइजेशंस के फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि व्हाट एक्चुअली दोज गिव यू। जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि व्हाट एक्चुअली डेटेड फंक्शंस गिव्स यू रिजल्ट, राइट? रेवेन्यू के बेसिस पे दिस इज योर मंथली रेवेन्यू, डे को ऐड करके चेक किया हमने, मंथली बेसिस पे चेक किया ईच फंक्शंस, डेटेड, सेम पीरियड लास्ट ईयर, पैरेलल पीरियड, देन प्रीवियस मंथ का भी देखा हमने। जो जैसे जैसे एक फंक्शन होता है, जैसे प्रीवियस मंथ का फंक्शन हमने देखा तो अलॉन्ग साइड विद दिस वहाँ पे प्रीवियस डे भी है, प्रीवियस ईयर भी है। यू ट्राई आउट दोज फंक्शंस ऑल्सो। एक ही फंक्शन से मतलब लिमिटेड मत रहो, सिमिलर वे में फंक्शन जैसे YTD, MTD, QTD हमने देखा, करेक्ट? तो ट्राई आउट करो वो फंक्शंस, टोटल YTD, टोटल QTD, टोटल MTD। okay, so next functions we want to understand dates MTD, dates QTD and dates YTD। जैसे हमारे पास YTD, MTD and QTD के लिए functions है, same functions we also available in the form of dates YTD, dates QTD and dates MTD, but there is a difference between these two functions। let's talk about total YTD function and total and dates YTD function, right? we already seen that total YTD what it gives you, year to date sale देता है हमें cumulative way में, राइट? जो वो रिजल्ट है सेम रिजल्ट्स वी कैन अचीव यूजिंग डेट्स YTD आल्सो, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
Again, I'm creating, instead of creating, I'll just copy this visual. Instead of again creating the visual, just copy this, go to the new page, I'll paste it over here. And for the time being, I'll just removing this date, date add, parallel period. Okay, इतना काफ़ी. मैं यहाँ पे मैंने year रखा है, month name रखा है, and we have revenue. I'm also adding my revenue YTD. ये cumulative way में हमने calculate करके रखा है. We also understand this कि how this work. Okay, if you see the function for this, इसका function कैसा था? We simply directly, we don't use any calculate kind of a thing. We simply say total YTD directly. Functions हमने यहाँ पे use किया. Clear? Now let's understand dates YTD. I'm go to the calculation, creating a new measure, and I'll say revenue using dates YTD. Okay, so whenever what this dates YTD gives you, basically dates YTD kind of gives you a table. So whatever functions gives you tables, you can't use those function directly in the measures. Meaning total YTD function जो है, it gives you a scalar value, because when we understanding the concept of measure in initial stages, we understand that measure gives you a scalar value. Measure आपको एक value provide करता है, correct? And based upon the category you analyze with those measures, वो category के साथ खुद को distribute कर लेता है. But वो होता एक value है, single value होती है in a aggregated way. टेबल का वैसा नहीं है, राइट? टेबल काइंड ऑफ कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रोज, राइट? सो दिस डेट्स वाईटीडी फंक्शन गिव्स यू अ टेबल. जैसे डेट एड फंक्शन है, तो डेट एड फंक्शंस को अगर मैं सिंगल वे में लिखने जाऊँ कि मैं कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं लिखा मेरे मेजर के एक्सप्रेशन में, मैं सिंपली लिखा कि डेट एड कैलेंडर टेबल की डेट -1 मंथ, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन मुझे क्या देता है? एक टेबल प्रोवाइड करके देता है, वट एवर इंटरवल आई एम पासिंग. सेम वे डेट्स वाईटीडी आपको क्या करता है? एक फिल्ट्रेशन के लिए टेबल क्रिएट करके देता है. कैसे? लेट्स से आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई नीड टू रैप दिस डेट्स वाईटीडी इन अ कैलकुलेट. टोटल वाईटीडी जो फंक्शन है, इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वाईटीडी एंड डेट्स वाईटीडी. तो टोटल वाईटीडी गिव्स यू अ स्केलर वैल्यू, dates YTD gives you a tabular value, a table to filter the value. So total, we never use calculate in terms of total YTD. आप total YTD का measure जब लिखते हो तो calculate लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे. Simply you can use direct functions total YTD. But in order to use dates YTD आपको calculate लिखना पड़ता है, because dates YTD gives you a table. So I'll say calculate expression is my revenue. I need to pass the revenue expression, and you see this is the, because I'm using a calculate functions expression मांगता है and filter मांगता है कि कौन से filter सबको apply करने हैं उसके ऊपर. हेलो, हाँ ऋत्विक बोलो. ठीक है, ऑनलाईन आहे का त्यांचं? 11:30 कुठे? इथे मंत्रीला. ठीक आहे, ओके. Fine. So let's understand this concept quickly. So we are using calculate. What calculate functions is for? We need to pass some filter on our expressions. That's why we understand for the calculate, right? Calculate function को use करना है, हम expression pass करते हैं, and certain filters if we apply on a particular expression. Let's say मेरा revenue है, मुझे particular Canada country के लिए revenue निकालना है. At that time what I am doing, I am passing calculate in bracket my major revenue, comma country is equal to Canada. That filter I am passing for the, in order to calculate the sale or the revenue for the Canada country. Same way, when I am using a calculate functions, I am providing a expression is my revenue, but this time for in the filtrations I am passing my date YTD function.
Okay, in the dates YTD, what I am passing, say dates YTD. You see these dates MTD, QTD, YTD. I am explaining about the dates YTD. For the rest, you need to explore on this dates QTD and dates MTD. So I'm using dates YTD function. When I'm dates YTD, you see it gives you returns a set of dates in a year up to the current date. एक सेट प्रोवाइड करता है, एक टेबुलर प्रोवाइड करता है वो इन टर्म्स ऑफ वट एवर इंटरवल यू पासिंग. सो इन द डेट्स YTD आई एम गिविंग योर डेट्स. यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना है मुझे, कैलेंडर टेबल का डेट, कैलेंडर टेबल का डेट. I'm just closing the parenthesis and I hit enter. Now if I use this measure in this particular visualization, you see I'm getting the same result. जो YTD मुझे दे रहा था सेम रिजल्ट्स मुझे डेट्स YTD भी देता है, बट दो फंक्शंस का यूज केस और यूज करने का तरीका अलग अलग है. अगर इफ यू आर यूजिंग डेट्स YTD फंक्शन, then you need to use inside the calculate. If you use total MTD, total YTD function, then you don't want to use the calculate function. अल्टीमेटली हम डेट्स YTD को कैलकुलेट फंक्शन में यूज कर रहे हैं, सो वी आर नॉट लिमिटेड टू दिस फिल्टर. हम यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स से आई एम पासिंग लेट्स से कंट्री, मेरा टेरिटरी डिम के कंट्री अंदर का लेट्स से आई एम पासिंग कनाडा का फिल्ट्रेशंस. those values gives me a cumulative total for only Canada, right? Because we are using dates YTD function in a calculate, under the calculate, inside the calculate. So multiple filtrations also can apply in terms of when we using dates YTD. Difference समझ में आ रहा है, right? Also in the total YTD itself you can apply. Let's see. YTD, okay. So यहाँ पे भी मैं कॉमा दे सकता हूँ. यहाँ पे देखो, अगेन इट आस्किंग फॉर मी द फिल्टर. लेट्स से मैं यहाँ पे कंट्री का फिल्टर दे की कोशिश करता हूँ. कंट्री इक्वल टू लेट्स से पासिंग. सेम वैल्यू. लेट्स अंडरस्टैंड. लेट्स से मैं अगेन एक कॉमा दे रहा हूँ, बट यहाँ पे यू सी नाउ इट आस्किंग मी टू प्रोवाइड अ ईयर एंड डेट. इफ आई वांटेड टू प्रोवाइड अनदर फिल्ट्रेशंस, लेट्स से मुझे अभी मेरी जो एक्सेसरीज है या लेट्स से मेरी जो कैटेगरी है, कैटेगरी के ऊपर भी कुछ एक फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है. इन दैट टाइम आई एम नॉट एबल टू डू दिस. बट in terms of another one, which one dates YTD, I can provide a multiple filtration because it is already wrapped inside the calculate. Okay, so what is the core difference between these two functions? Total YTD function gives you a scalar value. You don't need a calculate functions to calculate the total YTD, because total YTD gives you a scalar value. You can use these functions directly. But dates YTD gives you a set of a date. So in order to calculate YTD using dates YTD functions, we need to use calculate functions over there. This is the key difference between these two functions. Understand? Total YTD and dates YTD. Same way total QTD, dates QTD. Total MTD, dates MTD. तीन functions. Clear है ये? Online student? Hello? Online student? Is there anything in your mind regarding this? Any question, any doubt? अंडरस्टैंडिंग में कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? हेलो, बोलो कुछ. यस, नो, यस सर, क्लियर है. क्लियर है? ठीक है. यस सर. ओके, लेट मी थिंक ऑन दैट.
ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, यूज केस जो होती है रियल लाइफ. समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क यू अबाउट हाउ यू कैलकुलेट ईयर ओवर ईयर ग्रोथ. ठीक है, तो वो आपको एक सिनारियो देगा. फॉर एग्जांपल कि लेट्स से मेरे पास 2 साल का डेटा है, 3 साल का डेटा है, एंड आई वांटेड टू सी माय ईयर ओवर ईयर ग्रोथ. So what is your approach to calculate this year over year growth? So basically first understand कि what is year over year growth. Year over year growth मतलब आपने this particular year में compare to previous year कितना अचीव किया है, कितना अचीव नहीं किया, मतलब कितने अप एंड डाउन से कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. सो अगर मुझे प्रीवियस ईयर का लेट्स टॉक अबाउट द सेल, मेरा करंट ईयर का सेल एंड आई एम कंपेयरिंग विद माय प्रीवियस ईयर सेल. सो आई कैन कैलकुलेट ईयर ओवर ईयर ग्रोथ. हाउ वी कैन कैलकुलेट? तो मैं पहले क्या करूँगा, मेरा प्रीवियस ईयर का सेल कैलकुलेट करूँगा यूजिंग व्हाट फंक्शंस, डेट ऐड फंक्शन को यूज़ करके मैं प्रीवियस ईयर का सेल भी कैलकुलेट करूँगा. देन आई विल कैलकुलेट माय करंट ईयर सेल. सो देर इज नो सच अ फंक्शंस कॉल्ड करंट ईयर सेल. ठीक है, वट एवर यूर मेजर, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस रेवेन्यू मेजर, इट गिव्स यू ऑलवेज योर करंट सेल, राइट. यू वांट टू स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको दिस पर्टिकुलर ईयर का ही सेल चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑन दिस रेवेन्यू फिल्टर, रेवेन्यू के मेजर के ऊपर. जैसे मुझे पर्टिकुलरली चाहिए 2017 का सेल, कैन अप्लाई फिल्टर ऑन द दिस पर्टिकुलर मेजर टू गेट दिस थिंग. बट इफ यू कंपेयर, आपको कंपेयर करना है करंट ईयर से प्रीवियस ईयर, तो यू डायरेक्टली यूज योर ओरिजिनल मेजर रेवेन्यू विच गिव्स यू ऑलवेज अ करंट ईयर सेल. तो मैं दोनों को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? सो आई कैन डिवाइड, राइट. हम कैसे निकालते हैं कि मेरा करंट ईयर का सेल माइनस प्रीवियस ईयर का सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. दिस इज द आई थिंक लॉजिक फॉर द ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कैलकुलेशन. सो मेरे करंट ईयर का सेल माइनस माय प्रीवियस ईयर की वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा उसको मैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा. इट्स माय ग्रोथ, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, वो कैलकुलेशंस क्रिएट हो जाएगी. सो दैट लॉजिक आई कैन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डेक्स. ओके, तो मैं आइदर आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल्स फॉर दिस. लेट्स से मैं वेरिएबल ए क्रिएट करूंगा, उसमें मैं मेरे करंट रेवेन्यू का जो मेजर है उसको मैं लिखा कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू माय रेवेन्यू मेजर. Then variable B is my let's say previous year का sale. So I can let's say variable B के सामने मैं लिख सकता हूँ कि calculate my revenue, date add, calendar date -1 year. It gives me my previous year sale. So we have a variable A which gives you a current sale. We have a variable B which gives you a previous sale. Then in the returns you can say, और मैं एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंस between these two. So I'll say B minus A, yeah, A minus B, whatever. Then in the next variables, I can say divide my C divided by B previous year. C is my what difference, B is what my previous year. So C divided by B is nothing but my year over year growth. Or I can use this logic or this particular measure, this calculation in my visualizations in order to show this year over year growth. Okay. सो इस वे से आपको कैलकुलेशंस कभी कभी करने पड़ते हैं. आपको इंटरव्यूअर में ये अप्रोच बताना पड़ेगा कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा, आप किस वे से अप्रोच करोगे. लेट्स से आपको अज्यूम करवाना पड़ेगा कि लेट्स से वी हैव द रेवेन्यू मेजर ऑलरेडी क्रिएटेड विच गिव्स अस अ करंट मंथ सेल. In order to calculate previous month sale, we can use date add functions to calculate previous month sale. Then we can create a logic such a way that or variables in the measures, variable A, variable B, variable C, and then we proceed for the percentage calculation or year over year growth calculations. Sometime interviewer will be happy with the explanation itself, or sometime it asks you to write down the DAX for this. आपको चैट बॉक्स में उनको वो डैक्स लिख के देना पड़ता है. ओके, तो उस टाइम पे भी आपको फिर ऐसे अज्यूम करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो कि आप स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हो रेवेन्यू के लिए. लेट्स से दिस इज द मेजर, राइट. सो आपको थोड़ा एक प्रॉपर वे में डैक्स लिख के उनको दिखाना पड़ता है. ठीक है, डैक्स जब आप चैट बॉक्स में लिखते हो तो वहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं होता आपको हेल्प आउट करने के लिए. नॉर्मल वे में जब आप पावर वे में लिखते हो तो इंटेलिजेंस आपको बताता है कि आपको बाद में क्या पास करना है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, या वो सजेशन देता है कि आपके पास रेवेन्यू के इतने मेजर आप जब सेलेक्ट करते चलते हो कि मेरे को ये कॉलम चाहिए, ये मेजर चाहिए.
बट वो चैट बॉक्स में नहीं होता, चैट बॉक्स में कुछ आपको इंटेलिजेंस नहीं होता। तो थोड़ा मेजर्स जो आप स्टडी करते हो, जब इंटेलिजेंस पे भरोसा तो रखो, इट्स ओके, इंटेलिजेंस पावर भी डेस्कटॉप के लिए फाइन, इट्स ओके, बट आप डैक्स को थोड़ा पेपर पे लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इन ऑर्डर टू फंक्शंस। लेट्स से डेट ऐड फंक्शन है, तो डेट ऐड फंक्शंस को मैं पहले पैरेंथेसिस क्रिएट करूंगा। लेट्स से आई मैं राइट करूंगा पेज के ऊपर कि डेट ऐड, जैसे फंक्शंस हम लिखते हैं कि डेट ऐड में हम पहले क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लेते हैं, राइट, ओपन ब्रैकेट, देन ओपन ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशंस होता है। सो एक्सप्रेशन माइट बी लेट्स से मेरा रेवेन्यू के मेजर, सो रेवेन्यू के मेजर्स कैसे हम इंसर्ट करते, इट इज अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करो, लिखो उसके अंदर रेवेन्यू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करो, देन गिव्स योर कॉमा, बिकॉज वो सिंटैक्स है उस पर्टिकुलर मेजर का या उस पर्टिकुलर फंक्शन का। इस वे से क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन के लिए आपके दिमाग में रहेगा। एक दो तीन बार आपने प्रैक्टिस कर ली इस वे से, तो फंक्शन हम भूलते नहीं है। सेम गोज फॉर द सीक्वल ऑल्सो। सीक्वल की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्यूरी जब रन करते हो, बेटर वे कि उसको राइट करो। जब सीक्वल के सिंटैक्स आप राइट करते हो ना, तो वो ज़्यादा दिन के लिए आपके दिमाग में रहते हो। हम बचपन में जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, वी ऑलवेज यूज टू राइट, राइट। हमको कोई अगर कुछ याद रखना होता तो हम तीन चार बार उसको लिखते थे, एंड देन इट विल बी इन आवर माइंड फॉर द एग्जाम। सेम कंसेप्ट, क्योंकि लिखने से ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें रखती है माइंड में, इम्पैक्ट करती है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द वे वेयर आई लर्न द डेक्स। ओके, मैं जब प्रीवियस 4 to 5 years बैक और 6 years बैक जब मैं स्टार्ट किया था लर्न करना पावर बी आई और समथिंग, तो मैं इस वे से प्रैक्टिस करता था। तो होप इट विल हेल्प मी एंड होप इट विल हेल्प यू ऑल्सो। ओके, सो दिस वे से थोड़ा प्रैक्टिस करो, इवन नॉट फॉर द डैक्स, इवन फॉर द सीक्वल ऑल्सो आई यूज दिस वे ओनली। अभी मेरा सीक्वल पे इतना काम नहीं होता, बट स्टिल द कंसेप्ट आर क्लियर टू मी। अगर काम करना रहेगा तो आई विल बी, मैं कर सकता हूँ उस पर काम, राइट। बट अभी क्या हो रहा है कि आप आज पढ़ रहे हो सीक्वल, लेट से आपने पढ़ा, क्यूरीज भी लिख लिया आपने, आपको अंडरस्टैंड हुआ कंसेप्ट, बट आपने उसको 10 दिन 15 दिन हाथ नहीं लगाया, वो पूरा वैनिश हो जाता है। आप वापस से कोड लिखने जाओ, गलती होगा कोड में, पैरेंथेसिस रह जाएंगे, कॉमाज रह जाएंगे, कभी कभी वो फंक्शन में उसमें क्या पास करना है वो भी याद नहीं आएगा जल्दी। तो ये क्यों होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, राइट। तो प्रैक्टिस कैसे करो, इस वे से लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करो, स्पेसिफिकली फॉर द फंक्शंस। Okay, fine. So we'll stop today. I think have a lecture, another lecture 11:30. We'll connect on Monday and we'll start the reporting part. We continue with the reporting, right? So आज छुट्टी है, कल छुट्टी है संडे, तो फोकस ऑन द डैक्स। डैक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक्सेल की तरह इजी मत लेना, सीक्वल की तरह भी इजी मत लेना। डैक्स कॉम्प्लिकेटेड है, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आप खुद से डैक्स लिखने जाओगे तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँ, कैलकुलेट कब यूज़ करूँ, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो डैक्स का। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होगा। इंटरव्यू में आपने सारे क्वेश्चन दे दिए, इफ़ यू आर फेल्यूर इन द डैक्स यू आर नॉट सेलेक्टेड, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। डैक्स में फेल हुए, इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाओगे। डैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पावर बी। विजुअलाइजेशन तो ये कोई भी कर सकता है, नया बंदा बिठा लो, उसको बोलो कि ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो भी कोई भी कर सकता है। लॉजिक कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। कंपनी आपको हायर करती है बिकॉज यू नो हाउ टू क्रिएट द लॉजिक। आप उसी में फेल हो जाते हो तो कंपनी डोंट हायर यू, वो आपको हायर नहीं करेगी। और टुडेज कंडीशन देखते हैं मार्केट में, देयर आर लॉट्स ऑफ पावर बी डेवलपर आउटसाइड, राइट। तो आप अकेले नहीं हो यहाँ पे कि वो पावर बी जानते हो। एक बंदे के पीछे 200-300 पीपल्स अवेलेबल इन द मार्केट हु नोज द पावर बी। तो आपको अगर सेपरेट दिखना है तो आपको लॉजिक वे से ही ऐसे ही काम करना पड़ेगा, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कंसेप्ट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको हर टाइम नहीं आएगा। लोग बाहर वेट करते हैं कि उनको इंटरव्यू का एक कॉल आए, राइट। आपको अगर कॉल आता है इंटरव्यू का तो ये करो कि उस कॉल को ही आप ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी, इस वे से प्रैक्टिस रखो, ठीक है। अभी आपका पाइथन कंप्लीट होने को बाकी है, टाइम्स अभी अवेलेबल है आपके पास इन ऑर्डर टू पुट योर रेज्यूमे इन द मार्केट।
मार्केट में जाने के लिए अभी टाइम है, कुछ 2-3 महीने 3-4 महीने रहेंगे, बट तब तक जो भी जितना भी आपने पढ़ा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पावर बी, आई एम टॉकिंग अबाउट whatever the technologies you learn over here. It might be the Excel, it might be the SQL, it might be the Power BI, it might be the Python. अभी टाइम है, अभी टाइम को प्रॉपरली प्लानिंग करो पर्टिकुलर वे पे। जैसे सीक्वल आपका हो चुका है ऑलरेडी, देन गो ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सीक्वल के बहुत सारे क्वेश्चनरीज मिलेंगे, सॉल्व दैट क्वेश्चनरीज। पावर बीआई के रिगार्डिंग भी ऑनलाइन बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मिलता है। रिसर्च नॉट एवरीथिंग विल बी नॉट टॉट इन द क्लास। आपको खुद से भी जो बनते हैं ना कि पानी में डालने के बाद तैरना खुद को सीखना पड़ता है, राइट? तो हाथ पैर तो आपको ही मारने पड़ेंगे, तभी तैरोगे, नहीं तो डूबोगे। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ मार्केट की। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर वी आर ऑल्सो टेकिंग द इंटरव्यूज व्हेन वी फॉर आवर कंपनीज, वी आल्सो टेकिंग द इंटरव्यूज। People are applying for the job for 5 years, 10 years of experience people, but still they are not able to qualify the criteria what the company put over there, right? So we also, but still if you compare with this experienced people also, उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। बट इफ़ यू गो इन द मार्केट एज अ फ्रेशर, देन हमारे पास नॉलेज इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट हम सस्टेन कर सके, कि हम compete कर सके 1 or 2 years एक्सपीरियंस पर्सन के साथ। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस रखो खुद की। ओके, ठीक है, चलो हम मिलते हैं ऑन मंडे। Sir, यस, बोलो। we have calculated the revenue using total YTD, right? But हाँ, we have data of import mode, right? For हाँ, direct query, there are the limitations for the time intelligence. Then यस, how to यस, calculate the total YTD or यस। When we other talk mode? about the import mode, time intelligence fully give respect, or it will be very helpful to time intelligence functions to calculate the results. But when it is in a direct mode or live mode, time intelligence doesn't work properly. So टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को यूज करने के लिए इट इज अ मैंडेटरी थिंग्स दैट यू नीड्स टू बी इन अ इम्पोर्ट मोड। अगेन द मोड्स वगैरह क्या होते हैं, वी स्टार्टेड द पावर, जैसे ये लर्न होने के बाद आई शो यू द डिफरेंस बिटवीन दिस इम्पोर्ट मोड्स, डायरेक्ट मोड्स, लाइव मोड क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा आप, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, और देर आर सम मोर फंक्शंस which are specifically only work when you are in the import mode. Now we are in the import mode because what is the import mode? We created a copy of a data, right? Initially also I'll explain one more time, we are in the import mode. Import mode मतलब we data source को हमने connect किया, we copy this data and create another copy in our Power BI desktop file. जो data source में है वही data हमारे पास भी है। सो वी हैव अ फुल्ली कंट्रोल ओवर डेटा। आप डेटा को देख सकते हो, डेटा का डेटा टाइप वगैरह आप पावर बीआई में चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट व्हेन यू आर इन द डायरेक्ट मोड, आपको डेटा नहीं दिखता, यू आर ओनली एबल टू सी अ ब्लैंक स्क्रीन डायरेक्ट। इवन व्हेन वी आर ओपन इन अ पावर बीआई डेस्कटॉप, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस होते हैं, यू आर नॉट एबल टू सी दिस ऑप्शंस। ये टेबल का ऑप्शंस आपको नहीं दिखेगा, यू आर ओनली सी द रिपोर्टिंग व्यू, यू आर ओनली सी दिस मॉडल व्यू। यू कांट क्रिएट अ मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, समथिंग आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इन केस ऑफ लाइव रिपोर्ट्स आई एम टेलिंग है। तो लाइव रिपोर्ट्स में आप बस मेजर क्रिएट कर सकते हो, आप कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट नहीं कर सकते, डेटा को नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं। मेजर्स को जो क्रिएटेड है उनको भी नहीं देख सकते। जो आप खुद क्रिएट करोगे बस उसका ही वही दिखेगा आपको, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। सो इन दैट वे आपको पावर क्यूरी हेल्प आउट नहीं करेगा उस टाइम पे, बिकॉज डेटा ही नहीं तो पावर क्यूरी में क्या दिखेगा। तो डैक्स ही आपका साथी रहेगा। ठीक है, We are इसीलिए gonna see डैक्स that, right? सीखना जरूरी है। यस, We are gonna see that direct query using direct query, right? या वी आर गोइंग टू सी, स्पेशली आई जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ बेसिकली डायरेक्ट क्यूरी वर्क्स इन द सीक्वल सर्वर। तो जैसे हम सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करेंगे, एट द टाइम आई एम शोकेसिंग यू कि हाउ एक्चुअली डायरेक्ट क्यूरी गोइंग टू सी इन यूर एक्चुअल मॉडल। वो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि कैसे दिखेगा, कैसे वहाँ पे वर्क होगा, वो मैं शो कर दूँगा। इट इज़ नॉट एन इशू, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनलिटी ऑफ अ पावर बी आई वी नीड टू इन इम्पोर्ट मोड। तभी हम सारी फंक्शनलिटी को कवर कर पाएंगे। पावर क्यूरी को हम देख सकते हैं, डैक्स को हम प्रॉपरली सारे फंक्शंस को टच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट क्यूरी में या लाइव में रहता तो मैं आपको टाइम इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सिखा पाता। दैट्स व्हाई आई नीड टू बी इन इम्पोर्ट मोड।
मैं उनके बीच का डिफरेंस आपको समझा सकता हूँ, डायरेक्ट क्यूरी में कैसे होता है, लाइव मोड में कैसे होता है, मैं आपको वो शोकेस करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। रियल बट वर्ल्ड में भी इंपोर्ट मोड यूज रियल वर्ल्ड करते में, रियल प्रैक्टिसेस में, प्रोजेक्ट्स में ये टोटली डिपेंड करता है कि वट एवर डेटा यू आर फेसिंग, आप जिस डेटा सोर्स को कनेक्ट कर रहे हो वो कितनी साइज में है। मेरे केस में ये डेटा स्मॉल है, 2 minutes। मेरे केस में ये डेटा जो है ये स्मॉल है, सो इम्पोर्ट मोड विल बी फाइन। अगेन इम्पोर्ट मोड ऐसा नहीं है कि डेटा अभी मेरे पास 1000, 2000, 100,000 रोज है, इट विल पेन। इम्पोर्ट मोड भी काफ़ी हद तक होता है, इवन इन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज इम्पोर्ट मोड इटसेल्फ, बिकॉज पावर बीआई क्या करता है, पावर बीआई का वर्टीपैक इंजन डेटा को कंप्रेस कर लेता है, इतना भी साइज नहीं बढ़ता आपका, बट कुछ हद तक अगर जैसे मेरे पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इन दैट केस देन वी गो फॉर द डायरेक्ट मोड और लाइन मोड। बट अगेन उसके वे हाउस होते हैं कि आप एक मॉडल्स क्रिएट करते हो। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू ऑन लेटर ऑन दिस, मैं अभी वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, दैट्स व्हाई आई विल बी फोकसिंग ऑन ओनली इंपोर्ट मोड फर्स्टली, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड लाइन मोड difference, right? Okay, the other students are waiting outside, we'll just close this call, we'll connect on Monday. If you have any questions on this, we'll see you on Monday. Yeah. Thank Okay. you guys. Thank you.